Good morning, my dear student. Today, I have come up with a new video of your class 6 mathematics book, chapter 6, perimeter and area. So, prior to this, I am requesting you, all the students, to watch the previous video on chapter 4 and 5. Okay. So, today, without any delay, I am going to start the chapter solution for the chapter 4. Okay, just hold on. Here you see. Just a minute. See, this is a perimeter and area. So, first of all, I will discuss with you what do you mean by perimeter and what is area actually. Okay, in every chapter, I used to discuss the meaning of the name in depth so that the student can able to understand the inner meaning of the chapters. And after that, I will start solving the question and also explaining the in-text topics. Okay, so let us discuss with you what is perimeter. See, perimeter में यहाँ पे जो दो, मैं इसको दो हिस्से में डिवाइड करता हूँ, पेरी एंड मीटर. मेजरमेंट हम कुछ करते हो तो इसको हम बोलते हैं मीटर. ठीक है, मेजरमेंटिंग. So whenever you measure a length, its unit is meter. But in एक्चुअल में कुछ मेजर करना है तो इसको मीटर भी बोलता है. ठीक है, तो यहाँ पे पेरी मतलब क्या होता है? कोई भी चीज होता है, सपोज ये सर्कुलर शेप होता है या रेक्टेंगुलर शेप या इरेगुलर शेप, व्हाटएवर, लाइक दिस. सो पेरी मीन्स इसका पेरीफेरी से आया. पेरीफेरी मतलब इसका बाउंड्री. ओके, बाउंड्री. तो बाउंड्री को मेजर करना, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री मेजरिंग. मेजरिंग मतलब मीटर एंड बाउंड्री मतलब पेरी, सो इट इज पेरीमीटर. ठीक है, सो मेजरिंग ऑफ द बाउंड्री, दैट इज द लेंथ ऑफ द measurement of the length of the boundary is called perimeter. Okay, so if you start from here and you move towards along the boundary and come back in the same place, that is complete one round, then the length you covered is called the perimeter. Okay, similarly for this rectangular shape area, if you start from here and move toward this length and then breadth and again length and again breadth and come back to the original positions, that is you have completed one round. So the one round along its boundary, so the length covered along the boundary is called the perimeter. Okay, so in case of irregular shape also, if you start from here and moves toward the boundary and come back again in the same position, so the length covered by in one round, complete round, that is the measurement of the boundary length is called the perimeter. ठीक है, and what is area? Area means the space covered by this boundary is called the area. Here is also this space, the inside space covered by this boundary is called the area. Okay, here the area is this much. So hope you have got what is perimeter and area. Okay, so let us go to the next portion. Now I will show you how to find out the perimeter first and also how to find out the area.
you will get some formula over here. Okay, I'll show how the formulas derived so that you can memorize this formula very easily. Okay, so यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन दिया गया पेरीमीटर का, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. फिर भी आई एम marking here because this is the NCERT definition. The perimeter from here, the perimeter of any closed plane figure. Why it is closed plane bola? Suppose this is a rectangular shape area. This area is closed because if I draw like this, so the boundary is not completed. This is open space. Okay, so this should be closed like this. Okay, open होने से complete boundary नहीं होता है. ठीक है, this should be complete boundary. So the perimeter of any closed plane figure is the distance covered along the boundary when you go around it once. Okay, so this is the definition of the perimeter. ये एग्जाम में आ सकता है. Okay, dear students, for a polygon that is a closed plane figure made up of line segments, the perimeter is simply the sum of the length of its all sides. ठीक है, the total distance along its boundary, outer boundary. ठीक है, so the perimeter of a polygon, ये आपका आ सकता है fill up. The perimeter of a polygon equal to the sum of the length of its all sides. ठीक है, यहाँ पे एक दे देते फिल अप, लेंथ गैप कर देगा, आपको इसको मेंशन करना है. सो नाउ कम टू पेज टू पेज बेसिस. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल? ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, डू यू नो व्हाट इज रेक्टेंगल? यू नो, आई थिंक. सो रेक्टेंगल इज a shape which has length and breadth. ठीक है, so here this is the rectangle, this is the length, the longer side, and these two BC and AB are breadth या width. क्या बोलते हैं इसको? breadth, BREADTH या WIDTH भी बोलते हैं width, और इसको बोलते हैं length, LENGTH length. ठीक है, सो मैंने अभी बोला था कि एरिया क्या होता है. अरे व्हाट इज पेरीमीटर? पी. सपोज ये पेरीमीटर का पी बोला. पेरीमीटर होता है द सम ऑफ बाउंड्री, दैट इज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए, यू कम हियर, सो दिस डिस्टेंस इज ए डी. प्लस करना है, डी से सी में आया, इसको बोल सकते हैं सी डी या डी सी. फिर प्लस करो, सी से बी में आया मतलब बी सी या सी डी वट एवर. फिर बी से ए में आया, तो प्लस ए बी. यहाँ पे एक चीज देखो, जो ए बी का जो ये है रेक्टेंगल है, तो हम जानते हैं द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल. सो हियर ए बी एंड डी सी आर ऑपोजिट साइड्स, सो ए बी एंड डी सी आर इक्वल. सिमिलरली ए डी एंड बी सी are equal. If you take this as a y and this as a x, so ये length हो गया y and breadth हो गया x. So if I put here AB equal to DC, so AB पहले AD क्या होता है? AD equal to BC, तो AD होता है x, ADX, CD है y प्लस BCX प्लस ABY. तो देखो x प्लस x मतलब 2x हो गया, y प्लस y 2y हो गया. सो इफ यू टेक कॉमन 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सो x प्लस y. तो क्या आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला? 2 इंटू x क्या होता है? x होता है ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ, प्लस y हो गया लेंथ. सो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B, 2 into length plus breadth. So this is the formula of perimeter, E equal to 2 into L plus B. मतलब कोई भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल टू 2 into length plus breadth. ओके,
सो द फॉर्मूला हैज कम लाइक दिस. ओके. सो फॉर्मूला कैसे आया वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है, ये फॉर्मूला को सीखना है. ठीक है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड डीपली. ठीक है, इसमें तो इतना रट्टा नहीं मारना है ज़्यादा कुछ, ओनली फॉर्मूला को सीखना है. रट्टा मारो फॉर्मूला को एंड यूज करो. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ द फॉर्मूला कम्स, then you will not be able to apply this in your problems. Okay, that's why I am explaining this. Okay, my dear students, so let us go to the next page. यहाँ पे देखो, मैंने जो आपको दिखाया था ना उसी को यहाँ पे दिखा रहा है विथ एन एग्जाम्पल. ठीक है, इन्होंने ये 12 सेंटीमीटर लिया ए बी को, और ए डी को लिया 8 सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन इसमें बिठाया फॉर्मूला में, देखो 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 12 + 8, क्योंकि यहाँ पे लेंथ 12 है, ब्रेथ 8 है, तो 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, 12 + 8 होता है 20, तो 2 into 20 हो गया 40 सेंटीमीटर. ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ द पेरीमीटर आता है जो लेंथ और ब्रेथ जिस यूनिट में दिया गया उसी यूनिट में होगा. ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, अगर ये मीटर में है तो मीटर में होगा. अगर लेंथ अगर दिया हुआ मीटर में और ब्रेथ दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट बोथ इन द सेम यूनिट. या तो दोनों को मीटर में लेके जाओ या तो दोनों को सेंटीमीटर में लेके जाओ, तभी इसको ये फॉर्मूला, आफ्टर दैट यू अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो देखो फाइनली द फॉर्मूला व्हिच आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू, इट इज रिटन डाउन हियर. सो द ये सीखना, पेरीमीटर इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला बुक में पेंसिल से मार्क करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ इज द पेरीमीटर. नाउ लेट अस गो टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सेम चीज हम इस करेंगे. स्क्वायर का केस में स्क्वायर क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो इफ इट इज लेंथ, तो इफ देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से हम इसको निकाल सकते हैं. हियर इन द फिगर ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 1 मीटर. ये भी वन मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है. ठीक है, तो हम अगर इसका मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा ना. मतलब स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ होता है. ठीक है, तो हम अगर पेरीमीटर निकल इसका इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2 into L + B. तो यहाँ पे 2 into L इक्वल टू बी होता है, तो प्लस बी, 2 into B + B 2B हो गया 4B. तो B मतलब एक्चुअली क्या है, जो L और B क्या होता है, इनका साइड, तो इसका मतलब 4 into साइड. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 into साइड. ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया. अगर ये 1 मीटर लेंथ होता है, तो ये तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है, हम अगर पेरीमीटर का वो भी यूज करते फॉर्मूला, क्योंकि ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, हमने बोला था कि बाउंड्री दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या होता है 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 4 मीटर. सो समझ गया. अगर ये 1 ना देखे, ये देता है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये क्या वैल्यू 2 सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एनी नंबर. सो ए इज व्हाट, साइड, साइड लेंथ. ठीक है ना, साइड लेंथ. सो पेरीमीटर इक्वल टू 4 into साइड. ठीक है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है, so let us go move fast. Now I am going to discuss you the I'll show you example also. So move next. यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, तो सेम केस करना है.
पेरीमीटर पर ट्राइंगल में क्या करना है, हमको मालूम है ना, बाउंड्री का निकालना होता है पेरीमीटर। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल ऐड दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, पेरीमीटर 5 सेंटीमीटर, 5 + 4 + 7 ब्रैकेट देके यहाँ पे लिखना सेंटीमीटर, ठीक है। ये यूनिट लिखना जरूरी है। तो कितना होगा, 5 + 4 9, 9 + 7 कितना होता है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इजी है, वेरी इजी है। ओनली एट द बाउंड्री, इफ इट इज पैरामीटर, ओनली एट द बाउंड्री, वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स। सो होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है। तो इफ आई रियली लाइक दिस, you just forward this video or share this video with your friend so that they can get this benefit, okay। ये पे देखो, एक बच्ची मेजरमेंट कर रहा है टेप से, ठीक है। ये टेप है क्या, ये रस्सी है, रस्सी से। इसका नाम क्या है, अक्षी। सो अक्षी वांट्स टू पुट लेस अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। वैसे लेस पुट करना चाहता है इसके अराउंड में। इसका दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये वेरी इजी है, ठीक है। जस्ट हमको ये एक सपोज ये टेबल, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल कवर, ये सपोज है टेबल कवर है, ठीक है। वो चाहती है इसका चारों तरफ जो है ना एक धागा पुट करेगी, यहाँ से शुरू करेगी, चारों तरफ ऐसे एक धागा फैलेगी, ठीक है। बोला ये धागा का लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे जो लेंथ एंड ब्रेथ दिया है ना, इसका लेंथ बोला 3 मीटर, ठीक है ना, और ब्रेथ बोला 2 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगी 3 + 2 प्लस अगेन 3 + 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो यह एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हो गया 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या मीटर। ये तो मीटर लिखा तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो आ गया ना 10 मीटर, ठीक है। सो एग्जांपल इज आल्सो वेरी इजी, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस योरसेल्फ, ठीक है। सो आई विल मे बेसिकली एक्सप्लेन द क्वेश्चन which is not solved, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल में, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा if she takes 3 rounds of the square parks of side 75 मीटर। ये पे एक स्क्वायर पार्क है, वो अगर यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेगा, सपोज ये पार्क में से, देखो क्या बोला, पार्क का जो साइड है ना, सपोज यहाँ से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोज यहाँ से जो इसका लेंथ है, तो इस साइड कितना दिया, साइड ए दिया 75 मीटर। तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, ये जो एक बार घूमेगा यहाँ से इधर जाएगा, जूम, फिर जूम करके यहाँ पाएगा, तो इसके बाउंड्री है। तो ये एक स्क्वायर है, तो पेरीमीटर होता है 4 × साइड, वेरी इजी। तो 4 × साइड क्या है यहाँ पे, 75 मीटर, मल्टीप्लाई करो, आएगा 300 मीटर, ठीक है। वेरी इजी, वेरी इजी फॉर योर स्टूडेंट्स। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी। I hope you are also feeling so. So without any delay, let us move to the next. Now the figure it out, ठीक है। तो फिगर इट आउट में मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आप लोगों का। सो मैं ये प्रॉब्लम सब सॉल्व करके रखा हूँ, आई विल शो दोज टू यू एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इफ नेसेसरी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है, एक है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, दैट इज 2 × ब्रैकेट देके लेंथ प्लस ब्रेथ, perimeter of the square area, square space or square shapes, this is 4 × side, and perimeter of triangular shape is sum of all the sides, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे ये देखो पेज नंबर 132, अभी दिखाया था ना पेज नंबर 132 में, देखो ये पेज नंबर क्या है, 132। यहाँ पे जो 6 प्रॉब्लम बोला करने के लिए, फिगर इट आउट। टुडे आई विल ओनली सॉल्व दिस 6 प्रॉब्लम, देन आई विल स्टॉप दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स,
please remain with me, and after solving this video I will again come back in the next video with the rest of the part of this book. ठीक है? सो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स. ओके, क्या बोला, एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ. फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स. ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 14 सेमी, ब्रेथ दिया बट लेंथ नहीं दिया. ठीक है, इजी है ना. आप इसको फॉर्मूला यूज करोगे. देखो देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ. अब अगर इसमें फॉर्मूला यूज करोगे, मेरे स्टूडेंट्स, ये है एक रेक्टेंगल बोला, सिंपल एक रेक्टेंगल रफली में ड्रॉ कर लो. ड्रॉ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू ड्रॉ इट विल बी वेरी मच सिंपल फॉर यू. इफ इट इज रेक्टेंगल देन द, यहाँ पे पी दे दिया. पी मतलब पेरीमीटर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर. ये राइट डाउन करो, गिवन. ठीक है, गिवन देख राइट डाउन करो. फिर इसका दिया ब्रेथ मतलब बी दिया 2 सेमी. ये पे लिखना गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू पी, और ब्रेथ बी आर ई ए डी टी एच, ब्रेथ इक्वल टू बी. लेंथ कितना है, एल इक्वल टू व्हाट. ठीक है ना. सो हम जानते हैं ना फॉर्मूला क्या था. वी नो टू, देखो वी नो पी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये पे पुट करो. पेरीमीटर क्या दिया गया आपका 14, फॉर्मूला 2, एल डोंट नो, ब्रेथ दिया 2. इसको सिंप्लीफाई करो. ठीक है, 2 को इधर लेके आओ तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा इधर. ये मल्टीप्लाइड है ना, एल प्लस 2 के साथ ये मल्टीप्लाइड है. 2 को मैंने लिया लेफ्ट साइड में तो ये डिवाइड हो गया. यहाँ पे एल प्लस 2 रह गया. इसको कटिंग करेंगे तो कितना होगा 7. तो 7 इक्वल टू एल प्लस 2. अभी 2 को इधर लेके आओ माइनस करके, लेफ्ट में रह गया एल, यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया एल, यानी कि इसका लेंथ आएगा 5 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने दिखा दिया. तो सेकंड वाला भी बी भी ऐसे करना है, सी भी ऐसे करना है. तो इसका जो सॉल्यूशन है ये तो मैंने दिखा दिया. नेक्स्ट पेज में अब दिखाता हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है. ये तो मैं अभी जो जैसे दिखाया हूँ ऐसे लिखो D2. ठीक है ना. तो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप भी खुद से भी लिख सकते हो, बट ये कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया रेक्टेंगल का, ये भी आप ड्रॉ करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, नो प्रॉब्लम. ड्रॉ करोगे तो फिर भी अच्छा है, नहीं करोगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे देखो जो सॉल्यूशन मैंने दिखाया था अभी आप लोगों को, ये ऐसे एक ड्राइंग किया मैंने. तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई किया, एज इट इज गिवन लिखा क्या. ठीक है, सॉल्यूशन में ये देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है. ठीक है ना, ये दिया हुआ है एल कितना है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला आया 5 से में. ठीक है, तो सेकंड वाला भी ऐसा ही है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया. ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर दिया था. साइड ऑफ लेंथ मालूम नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो. ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे ऐसे. वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. ठीक है, तो यहाँ पे साइड तो दे चुका है, और पेरीमीटर सो इसको और देके पेरीमीटर है 20 सेंटीमीटर, सो लिखो 20. उसके बाद यहाँ पे सेमी, जब भी इक्वेशन लिखते हो ना, इक्वेशन में यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, ये लास्ट में लिखोगे यूनिट. ठीक है, तो 20 सेमी, तो 20 लिखा मैंने. तो 4 इंटू साइड कितना दिया मालूम नहीं है, तो साइड तो दिया नहीं, साइड को लिख दिया साइड. यहाँ पे अभी देखो 4 जो है ना राइट साइड में 20 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो जब इसका हम लेफ्ट में लेके आऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो 20/4 डिवाइड मतलब नीचे आएगा, तो ये हो गया ओनली राइट साइड में क्या रहेगा साइड, साइड बी ई साइड, क्योंकि 4 तो इधर आ गया. तो इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5. सो 5 इक्वल टू साइड. ठीक है ना, तो आंसर में लिख दोगे कि इसका जो साइड है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है दोस्त. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. So you just pause the video and write it down, and after that again run this video. Okay, so let us move fast because the basic things you have already understood. ठीक है ना, so it will be very much helpful for you. You can do it yourself also. I can give you the home tasks, but still I am solving this. Okay, so यहाँ पे देखो C में क्या दिया, perimeter of rectangle is 12 meter, length given, breadth क्या है, like previous. Apply the formula and apply this formula and put the value given
एंड सिंप्लीफाई इट। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन 2 में क्या है, रेक्टेंगल विथ साइड लेंथ 5 सेमी एंड 3 सेमी इज मेड यूजिंग ए वायर। If the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the length of the side of the square? Very, very important. This is very, very important. एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो, इसको तो एक्सप्लेन करना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन। देखो क्या दिया, एक रेक्टेंगल, यहाँ पे ड्रॉ करो अपना मर्जी से। ठीक है, छोटा बड़ा ड्रॉ करो तो ये रेक्टेंगल। ठीक है, अभी ये रेक्टेंगल को कितना लेंथ है, 5 सेमी। इसका ब्रेथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। ओके, अभी बोले ये जो रेक्टेंगल बनाया गया, इसको एक वायर से बनाया। मतलब ये वायर यहाँ पे जुड़ रखा है। वायर को पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। अभी क्या किया ना, इसको यहाँ पे काट के ना, जोड़ा खोल के ना, इसको पूरा लंबा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। अगर स्ट्रेट कर दिया तो उसका लेंथ कितना होगा, बोल सकती हो? ये 5, ये 3, ये भी 5 होंगे क्योंकि रेक्टेंगल है। ये भी 3 होंगे ना। तो जब खोल देगा इसका मतलब क्या, ये पूरा इसका जो बाउंड्री है ना, ये पूरा खुल के इधर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितना लेंथ होगा उसका, इसका लेंथ होगा, ये जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ना, कितना आएगा पेरीमीटर, देखो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी। तो यहाँ पे एल कितना है, एल है 5 प्लस ब्रेथ है 3। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ये पे कितना आएगा, 2 इंटू 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो ये जो वायर है ना पूरा, इसका लेंथ होगा 16 सेंटीमीटर अगर इसे खुल देगा तो। ठीक है, ये लेंथ मैंने निकाल दिया। आप क्या करना है, अब इसी वायर से, इसी वायर को बेंड करके बनाना है स्क्वायर। ओके, क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। सो आप लेट द लेंथ ऑफ द साइड इज एक्स, क्योंकि हमको मालूम नहीं अभी क्या साइड होगा, मेरे को ये निकालना है। इफ द वायर इज स्ट्रेट एंड द बेंड एंड देन बेंड टू फॉर्म स्क्वायर। अब इसको स्ट्रेट करके फिर इसका एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड, डोंट नो। तो हम इसको एक्स पकड़ ले। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका बाउंड्री क्या होगा, टोटल लेंथ कितना होगा बाउंड्री का, इसका पेरीमीटर। और ये तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 16 सेमी वायर देके बनाया था। तो इसका पेरीमीटर जो है ना स्क्वायर का होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगेन इसका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू एक्स। अभी मेरे को ये पी मालूम है 16 है। सो अगर पी मालूम है, देखो लेफ्ट साइड में 16 है, राइट साइड में 4 इंटू एक्स। 4 को आप लेके आओ लेफ्ट साइड में डिवाइड करके, तो राइट में रहेगा एक्स। इसको आप कटिंग करोगे तो आएगा 4, यानी कि एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक्स क्या है, साइड। सो द लेंथ ऑफ द साइड विल बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका, स्क्वायर का। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका 2 पार्ट में करना पड़ता है। पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, वही पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। फिर स्क्वायर का एक साइड पकड़ लो, एक्स लेट करो, फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है स्टूडेंट्स, होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, दो आई हैव डन द सॉल्यूशन, you can write it down, but for understanding purpose of I am explaining this. Okay, and this video is only for this. ठीक है, ओनली गाइड पेपर और सॉल्व पेपर देखने से कुछ बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है ना, आपका गाइड बुक में अगर ऐसे मिल जाएगा आंसर, बट नो बेनिफिट, बिकॉज ऑल दिस एक्सप्लेनेशन एंड द वर्ड्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, ठीक है, ड्यूरिंग दिस एक्सप्लेनेशन, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, so my students, come to the question number 3. Here you see this is a triangle. So triangle में मैंने क्या बोला था, in triangle the perimeter is sum of all sides. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको पेरीमीटर P दे दिया, कितना दिया, 55 सेंटीमीटर। जो जो दिया पहले लिख लेना। ठीक है, फिर लेंथ कितना दिया, L 20 सेंटीमीटर एंड मतलब 2 साइड्स का दे दिया। सपोज ये इक्वल टू एल है, ये इक्वल टू बी है,
ये इक्वल टू सपोज ए है, लेंथ ए है, सॉरी इसको अगर मैं साइड ए लेता हूँ, इसको अगर साइड बी बोलता हूँ, इसको अगर साइड सी बोलता हूँ, तो ए इक्वल टू तो ए इक्वल टू 14 सेमी दिया हुआ है, बी इक्वल टू 20 सेमी दिया हुआ है, सी मालूम नहीं, ये निकालना है सिंपल। इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। सो ए दिया हुआ है 14, बी दिया हुआ है 20 प्लस सी जाने ना, नहीं जानते। सो क्या हो गया पे, ये हो गया 34 प्लस करने से प्लस सी, और पी हम जानते हैं 55। सो सी विल बी इक्वल टू 55 माइनस 34, जो आएगा कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सी यहाँ पे ये करवाया, इसको इन्होंने एक्स लिया, हमने इसको एक्स पकड़ा, इसमें इसको 14 तो दे दिया, दिखा दिया। तो ऐसे इसका हो गया सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो हियर आई विल गिव वन होम टास्क टू यू। ठीक है, you can try it, or otherwise you can pause this video and try the question number 4. ठीक है, let us see what is the question number 4. Question number 4 is, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fencing cost is 20 rupees? Very very important, very very important। ठीक है, आपको एक फेंसिंग करना है, उसमें कॉस्टिंग किया बैठेगा। ठीक है, देखो सिंपल है, सिंपल है। सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने से ना थोड़ा आसान रहता है, इज वेरी इजी। सपोज यहाँ पे क्या बोला, एक पार्क है, ये एक पार्क है, ठीक है ना। पार्क का आसपास में कुछ फेंसिंग करना है, ठीक है। तो ये जो फेंसिंग करता है ना, इसका लेंथ कितना दिया 150 मीटर, इसका ब्रेथ दिया 120 मीटर। सो ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ। तो फेंसिंग मतलब क्या, पेरीमीटर निकालना है, कितना लंबा फेंसिंग लगेगा। तो क्या फॉर्मूला है, 2 × L प्लस बी। तो 2 × L कितना हो गया 150 प्लस ब्रेथ हो गया 120। तो टोटल कितना हो गया 2 × 270 इक्वल टू 540 मीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर। यह तक आप लोग जानते हो। अभी कॉस्टिंग कैसे निकालते हो, देखो। अब ये पे बोला गिवन है कि इसका जो कॉस्टिंग है, इज फेंसिंग कॉस्ट इज ₹40 पर मीटर। मतलब ये 1 मीटर का अगर फेंसिंग करोगे तो आपको पैसा लगेगा ₹40। ठीक है, अब आपका टोटल कितना लेंथ हुआ 540। सो 1 मीटर में अगर 40 लगता है तो 540 में कितना लगेगा, ये मल्टीप्लाई होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वुड बी 40 × 540। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 21,600 रुपीज। ठीक है, कॉस्टिंग बोलेगा तो, अगर पर मीटर कॉस्टिंग बोलेगा तो इसको डायरेक्ट पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 भी दिख रहा है यहाँ पे, क्या बोला देखो। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side if it is used to form a square? very very, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका टोटल लेंथ कितना है, एक वायर है ऐसे, इसका लेंथ दिया गया 36 सेंटीमीटर। अब देखो इस वायर को बेंड करके कुछ ही बना लो, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल जो भी बनाओगे ना, उसका जो पेरीमीटर होगा ना वो होगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी आपको बोल रहा है इससे अगर एक स्क्वायर इसको बेंड करके एक अगर स्क्वायर बनाता है तो उसका साइड कितना होगा। तो सपोज इसका साइड x होगा, ठीक है ना। तो सिंपल इसमें लिखोगे कि हम जानते हैं ना पेरीमीटर इक्वल टू 4 × साइड। ठीक है, 4 × साइड, तो इसमें पेरीमीटर हम जानते हैं 36 बिठा दो इसमें, और इक्वल टू 4 × साइड। साइड तो निकालना है 4, यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई है तो इसको लेके आओ राइट साइड में,
36/4 इक्वल टू साइड, इसको करोगे तो आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब इसको स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर का साइड आएगा, लेंथ ऑफ साइड भी कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोले ट्राइंगल बनाओ, सिंपल, ट्राइंगल बनाओगे तो कितना, बोले ये इक्वल लेंथ का ट्राइंगल बनाना, इक्वल लेंथ का, सिंपल, ये अगर एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 3x, एक्टा एक्स, 2x, 3x, मतलब 3x हो गया। p इक्वल टू, तो देखो p क्या था, p था 36, सिंपल, p है 36 इक्वल टू 3 × x, सो ये 3 जो है ना x में मल्टीप्लाई है, तो इसको लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो ये डिवाइड करके आएगा, तो x कैंसिल करोगे तो आएगा 12, इसका मतलब 12 इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है, जो ट्राइंगल बनाओगे ना इसका साइड होगा 12 करके, ठीक है, 12 सेमी करके आएगा। अभी बना रहे हैं एक हेक्सागोन, ठीक है, व्हाट इज हेक्सागोन, जिसका साइड 6 होता है, ठीक है, हेक्सागोन 6 साइड 6, ठीक है, और ये होगा, ये क्या बोला रेगुलर हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ना ऑफ इक्वल लेंथ, तो सबका साइड इक्वल, समझ लो एक्स 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 एक्स, तो इसमें 6 साइड होगा, सारे इक्वल होंगे, तो सबको अगर सम करेंगे कितना आएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 6x, मतलब 6x होगा, तो ये 6x इक्वल टू कितना होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, 6x इक्वल टू हो जाएगा 36, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर 36 जिससे ये बनाया गया, सो x इक्वल टू आएगा 36/6 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये सारे जो एनोटेशन मैंने अभी यूज किया इसको मैं सब रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, और इसका सॉल्यूशन सब मैंने करके रखा है पे टाइप करके, तो वहाँ से आप लोग देख लो, मैं ये सब एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे सारे का सारे सॉल्यूशन मैं दे रखा हूँ, तो आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो होप यू आर एंजॉइंग, and if you are really enjoying, so again I am telling you, please forward this video to your friends, okay, and also ask them to watch the previous videos, है ना, तो ये एग्जाम से पहले सारे आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, क्या बोला, ए फार्मर हैज ए रेक्टेंगल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ए फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ऐसे एक फील्ड है विथ हैविंग लेंथ 230 मीटर, मतलब 230 मीटर है लेंथ, एंड ब्रेथ 160, तो इसका यहाँ से इसका जो है ना, ये होता है इसका लेंथ, और ये होता है इसका ब्रेथ, ठीक है ना, तो इधर होगा 230 मीटर, और इधर होंगे 160 मीटर, ठीक है, लेंथ ब्रेथ में मार्क कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, he wants to fence it with 3 rounds of rope, देखो दिखा दिखा रखा है, यहाँ से इन्होंने फैंसी घुमा रखा है, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे एक राउंड दिया पूरा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, फिर यहाँ पे किसने देखो दूसरा राउंड दिया, फिर घूम के आके इन्होंने तीसरा राउंड भी दिया, मतलब ये 3 बार राउंड दिया, तो एक बार जब राउंड देता है ना, 1 टाइम, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना, जब 3 टाइम देगा तो कितना होगा, 3 गुना होगा पेरीमीटर का, तब आप उसका लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, उसको आप यहाँ से आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, P इक्वल टू 2 × L प्लस ब्रेथ करके पेरीमीटर निकल जाएगा, फिर ये पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करो करके उसका लेंथ निकल जाएगा, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ही नीडेड, तो जो पेरीमीटर आएगा ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 3 टाइम्स
इसको राउंड किया, ठीक है ना, फिगर में देख रहे हैं। टेंसिंग में उन्होंने 3 टाइम राउंड किया तो ये 3 गुना होगा, ठीक है ना। ये मैंने और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि ये बहुत इजी है। यहाँ पे मैं दे रखा हूँ सोल्यूशन। देखो, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ये बनाया, ये 780 हुआ। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मर इन 1 राउंड इज 780 मतलब पेरीमीटर। सो ये जब 3 राउंड मारेगा तो ये 3 टाइम्स होगा, ये इतना होगा, ठीक है। सो ये आपका यहाँ तक खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट डे में हमने 6.1 पेरीमीटर दैट इज फिगर इट आउट 133 पेज एंड 134 सॉल्व करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, thank you for being with me for a long time today. So hope you understood, and today is no more. Thank you. Bye bye. I will see you tomorrow.